जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए। সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন এখন বিরোধীদের কাছে একটি বড় ইস্যু। বিরোধীরা সোমবারও নিজেদের দাবিতে অনড়। আজ সংসদে নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। তাতেই অধীর রঞ্জন চৌধুরী, গৌরব গগৈ সহ একসঙ্গে ৩৩ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়টার জন্য। গত সপ্তাহে সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘন ইস্যুতে তুমুল হই হট্টগোলের কারণে একসঙ্গে ১৩ জন লোকসভার সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এছাড়াও বিশেষাধিকার কমিটির রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আরো ৩ জন সাংসদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে শীতকালীন বাকি অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী পক্ষের মোট ৪৬ জন সাংসদের বরখাস্ত করা হয়েছে। সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, গৌরব গগৈ, তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সৌগত রায় ও শতাব্দী রায়, ডিএমকের দয়ানিধি মারানের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংসদরা। श्री के नवसकानी, श्री के वीरस्वामी, श्री एन के प्रेमचंद्रन, श्री सौगत राय, श्रीमती शताब्दी राय, श्री असित कुमार मल, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री एंटो एंटोनी, श्री एस एस पलानीमानिक्कम, श्री अब्दुल खलीक, श्री तिरुवुक्करसर, श्री विजय वसंत, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्रीमती काकोली घोष दस्तीगार, श्री के मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री एस रामलिंगम, श्री के सुरेश, श्री अमर सिंह, श्री राजमोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई एंड श्री टी.आर. बालू। आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। जी Sir, I move the following. With your permission, that this House, having taken the serious note of misconduct of Shri Kalyan Banerjee, Shri A. Raja, Shri Dayanidhi Maran, Shri Aprupa Podar, Shri Parshur Banerjee, Shri E.T. Mohammad Bashir, Shri G. Selvam, Shri C.N. Annadurai, Shri Ajiranjan Chaudhary, Dr. Sumiti, T. Sumiti, Shri K. Navaskani, श्री के वीरस्वामी, एन के प्रेमचंद्रन, श्री सौगत राय, श्रीमती शताब्दी राय, श्री असित कुमार माल, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री अंटो अंटोनी, श्री एस एस पलानीमानिक्कम, श्री तिरुवक्कसर, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार, श्री के मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री रामलिंगम, श्री सुरेश, श्री के सुरेश, श्री अमर सिंह, श्री राजा मोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई and Shri T.R. Balu in utter disregard to the House and the authority of the chair, including the display of placards in the House, and having been named by the chair, resolve that the above mentioned members may also be suspended from the service of the House for the remainder session of the Rule 374-2. And sir, with your permission, I also move that Shri Jaykumar, Shri Abdul Khalik and Shri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the great disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need to be suspended till the committee gives its report. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 19 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। এদিকে সাসপেন্ড হওয়ার পর কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, সরকার স্বৈরাচারী আচরণ করছে, সংসদকে বিজেপির সদর দপ্তরে পরিণত করেছে। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে বিরোধীরা সরকার পক্ষকে সহযোগিতা করেছে, কিন্তু তার প্রতিবাদে বিজেপি সরকার বিরোধীদের সঙ্গে বিমাতা সুলভ আচরণ করছে। বিজেপি সরকার স্বৈরাচারী শিখরে পৌঁছে গিয়েছে। বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তার উপর ভর করে তারা সংসদে লাঠি ঘোরাচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন कांग्रेस नेता অধীর রঞ্জন চৌধুরী। सुबह से और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे, तो इसलिए वो ये करके दिखाया। बहुत गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो है, सबको, सारे जो लीडर है, मैं भी सारे लीडरों जो है विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर, प्रिविलेज कमेटी को भी वो तीनों के लिए जो मतलब वो पीठासीन के नजदीक चले गए, तो तीनों के लिए, हम सबके लिए नहीं, तीनों के लिए। वो সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।